Namaskar. So we learned how to sing Thai, Dugun and Tigun in Dhrupad. While singing Dhrupad, how can we know these layers, different layers, and how can we perform, how can we practice it with the help of the tal played on tabla, because this time tabla is available, though this tal is played normally on pakhavaj, because with Dhrupad only pakhavaj is accompanied. So, as I was telling you about the Tigun and about the Dugun and Thai. Now, the Tigun is, on one way, Tigun is what I told you, the example how Tigun is sung from, it is started from the matra 9th, 9, 10, 11, 12. Now, it can also be taken from the first matra. So, how it is done? Let me first give you the example of Tigun sung from the 9th matra, and the second one is the Tigun sung from the first matra. So, what is the difference? You can easily make out. तरीके से कहाँ हम तिगुन को लेते हैं, पहली मात्रा से कैसे उठाएंगे। यहाँ पर हम आखिरी की दो मात्राओं में 1 2 3 1 2 3 कर सकते हैं, यानी 11वीं मात्रा और 12वीं मात्रा से। गा करुणामय
स्वच्छ हास करुणामय त्रिपुरदलन महाकाल त्रिपुरदलन महाकाल त्रिपुरदलन महाकाल Now, these were the two different ways to take or to sing Tigun while singing Dhrupad. The first one where we started after ninth matra, we started the Tigun. But in the second form, we started Tigun from the first matra. So, what is the difference? The difference is that when you start from the first matra, we have to take the tihai of the first line of the Dhrupad. To come to the equal, to come to the sum, we have to take tihai. Tihai means 3 times we have to repeat the first line. But in the first one, we started counting 1, 2, 3, 1, 2, 3 and we started singing, and naturally we come to sum in that accurate time. तो ये दोगुन तिगुन लेने के जो 2 तरीके हैं, ये विद्यार्थी कोई भी तरीका इख्तियार कर सकता है, कोई भी इसको। हमारा मेन मोटो है कि हम सम पर आए, हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से दुगुन और तिगुन हो गई। तिगुन के 2 प्रकार आपको बता दिए। अब बारी आती है चौगुन की। तो चौगुन में बिल्कुल जिस प्रकार से आप दुगुन ले रहे हैं वहीं से आपने चौगुन को भी स्टार्ट करना है। डिफरेंस क्या है? आपको 1 2 1 2 की जगह 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार काउंट, क्योंकि एक मात्रा में 4 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 3 ताली में आपकी 12 मात्रा पूरी हो जाती है। और जबकि हम उसमें देखें 1 2 1 2 1 2 ये स्पीड है जी किसकी है? ये लय आपकी दुगुन की है। तिगुन की 1 2 3 1 2 3 1 2 हर एक ताली में आपकी 3 मात्राएं हैं। और इसी प्रकार से चौगुन में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी एक ताली में आपकी 4 मात्राएं हैं। तो ये बहुत खूबसूरत तरीका है, इसीलिए ध्रुपद गायकी में ये मैं कहूँ बिल्कुल मैथमेटिक्स आपकी इसमें सामने आती है। अब हम चौगुन को सीखने की कोशिश करते हैं। गा गा धर चंद्र भाल गा गा धर चंद्र भाल 1 2 3 4 1 2 3 गंगाधर चंद्रभाल त्रिनयन धर मुंडमाल स्वच्छ हास करुणामय त्रिपुरदलन महाकाल गा गा धर चंद्र गंगाधर चंद्रभाल त्रिनयन धर मुंडमाल स्वच्छ हास करुणामय त्रिपुरदलन महाकाल गा धर चंद्र चौगुन। चौगुन बिल्कुल दुगुन की तरह शुरू हो रही है। तो इसको गाते वक्त आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम उसको काउंटिंग करके हम उसको कर सकते हैं। तो जब आप अभ्यास करें ड्यूरिंग द रियाज यू कैन काउंट इट एंड बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर singing it or you are performing on any stage or anywhere, then it doesn't look nice to count like 1 2 1 2 3 1 2 3 4.
it gives a very immature impression, So better to count it inside you, count in your mind and then start it, so that it gives a very beautiful starting also, very soothing, very smoothing starting also, and the calculation is also in your mind, because the calculation is very important. We have to come to some, if we calculate, if we started perfectly, if the number goes correctly, then the sum comes in a very smooth way. Otherwise, we say कि betala hai. This is betala. That means you are not coming on sum. That itself derives that you are betala. So the practice, you have to do the practice again and again. And while doing the practice, you can count it like this, 12 matras on your fingers, or you can count 1, 2, 3, 4, 3 times you can count. Whatever is easy. If during practice, if you can just give the tal on your hand, then also it is a very beautiful way of learning, and also having the command on ताल. तो ताल अपने आप में देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ताल ही तो जीवन है. हमारी हृदय गति भी ताल है. पूरी सृष्टि वो ताल में चल रही है. ताल नहीं है तो सब गड़बड़ है. इसलिए ताल बहुत ज़रूरी है. और इस तरह की ध्रुपद गायकी जो है वो न केवल सुर में आपको पक्का करती है, बल्कि आपको ताल में भी पक्का करती है. इसीलिए कोई भी गायकी के कलाकार या संगीत प्रेमी ध्रुपद को बहुत महत्व देते हैं. इसलिए बहुत ही पूजनीय है ये जो गायकी है. यह आपका एक सर्वांगीण विकास करती है. इसीलिए ध्रुपद गायकी से बाकी शैलियाँ जो है बहुत कुछ लेती रहती हैं अपने आप में. ऐसे ही नहीं इसको मियां तानसेन ने इस गायकी को अपनाया और इतना आगे लेकर गए. ऐसे ही नहीं, एक लंबे समय से ये गायकी जो है चली आ रही है और आज भी उतनी ही आकर्षित करती है अपनी तरफ. और एक कहते हैं कि संपूर्ण जो है गायकी में इसका नाम आता है. तो हम दोबारा से इसकी चौगुन को देखते हैं. गा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स स्पीड. तो ध्रुपद गायक जो है इसको बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं. लेकिन जब विद्यार्थी के तौर पे हम ध्रुपद को सीखते हैं शुरू में, तो हम इन्हीं दोगुन तिगुन चौगुन को करते हैं या ठाई में बंदिश को सीखते हैं. तो जब हम किसी ध्रुपद कलाकार को सुनते हैं तो हमें आनंद तो आता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये कहीं से शुरू होकर कहीं हमें दोगुन की स्पीड दिख रही है, कहीं तिगुन की दिख रही है, कहीं चौगुन की दिख रही है, कहीं वो ठाई की दिख रही थी. ये क्या चीज़ है? तो कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो बेसिकली इसको हम कहते हैं उपज. उपज इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट लयर्स.
So upaj means to create something. So that thing is created on the spot. The tal is going on Pakhavaj, and the Dhrupad singer himself, he creates, he makes his own painting, he makes his own world, and then, but the Pakhavaj player, he understands where the lay is going, what the artist is doing, what he wants to say. I mean, the combination of both Pakhavaj and singing gives a beautiful rendering of the Dhrupad, and this Dhrupad results in the enjoyment, or you relish the performance, you enjoy the performance, and you go into some other world. You say the आनंद की अनुभूति हुई, क्यों उस अनुभूति का सोर्स क्या है? उस अनुभूति का सोर्स वही है जो दोनों पखावज और वादक और जो गायक दोनों मिलकर जो परफॉर्म करते हैं, वो जो एक रिजल्ट सामने आता है, उसका आप आनंद लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन न रखें कि वो उपज है क्या। उपज का मतलब ही है अपने आप में कुछ एक नया प्रस्तुत करना, कुछ नई बात पैदा करना। तो ये लय से खेलते, ये एक तरह से स्पीड जो है उससे वो कैलकुलेट करते हैं, खेलते हैं, और इसीलिए पखावज वादक इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा तो चार ताल नहीं बजाते, वो उसमें अलग तरह से उपज अपनी करते हैं, गायक अपनी करता, दोनों जब मिक्सअप होते हैं तो बहुत सुंदर जो है एक बात बनकर सामने आती है। तो कोशिश करते हैं कि उपज कैसे होती है। एक बिल्कुल बिगनिंग में आपको बताती हूँ कि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को धीरे धीरे करते करते आएगा, और शायद आप में से कोई विद्यार्थी यदि ध्रुपद गायकी को अपने आगे कंटिन्यू करता है तो उसके लिए एक बिल्कुल बेस है। हालांकि मैं ध्रुपद गायिका नहीं हूँ, लेकिन ध्रुपद हर शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बेसिक हमें समझ में आ जाता है। और ध्रुपद गायकी के बहुत से घराने हैं। ध्रुपद गायकी में 4 वाणियाँ हैं। तो इन वाणियों के, इन घरानों के, इन परंपराओं के गुरुओं के पास यदि उसकी सही तरीके से तालीम ली जाए तो ध्रुपद गायकी में और अधिक विस्तार और अच्छे तरीके से उसकी प्रस्तुति की जा सकती है। तो हम बहरहाल कर रहे थे बात उपज की। तो उपज क्या है? अब देखिए तबले पे ताल बज रही है और मैं कोशिश करती हूँ कि उपज का एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करें। गंगाधर 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 चंद्रभाल त्रिनयनधर मुंडमाल गंगाधर चंद्रभाल त्रिनयन त्रिनयन गंगाधर चंद्रभाल गंगाधर चंद्रभाल गंगाधर चंद्रभाल भाल भाल गंगा। मेरा मकसद क्या है कि मैं सम पर आना चाह रही हूँ और मैं उसके बोलों को अलग अलग बनाऊँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रथम पंक्ति है उसी पंक्ति को मैं सेकंड पंक्ति, थर्ड और फोर्थ पंक्ति को लूँ। मेरी इच्छा यदि मैं गंगाधर चंद्रभाल त्रिनयनधर मुंडमाल इसको लूँ या मैं गंगाधर चंद्रभाल को ही लेके चलूँ, तो मैं लय से खेलने की कोशिश करती हूँ। मैंने हाथ से आपको काउंटिंग इसलिए दिखाई है कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
नॉर्मली जब ध्रुपद गाया जाता है तो ये काउंटिंग को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो मन में चल रही होती है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी कि पहले मैंने आपको एक एक मात्रा की फिंगर्स पे दिखाई, फिर मैंने आपको 4 फिंगर्स में 3 बारी करके उस आवर्तन को, उस सर्कल को कंप्लीट किया। तो ये उपज जो है वहीं पर, और मैंने कभी उसको कैलकुलेट नहीं किया, ना मैंने उसको सोचा, लेकिन उस लय का आनंद, अलग अलग लय के कॉम्बिनेशंस करके मैंने कोशिश की कि मैं अब उसको खत्म करके अपने सम पर आती हूँ। तो ये इसी को हम उपज कहते हैं। सम पर हर एक उसका एक उद्देश्य है कि हम पहली मात्रा या सम पर हम पहुंचे, अलग अलग तरह से इसी का आनंद जो है वो श्रोता लेते हैं जब कोई ध्रुपद गायक जो है उसको गाता है और लय के साथ खेलता है, तो बहुत अलग अलग तरीके की वेरिएशन जो है वो आती हैं। लेकिन हम दोगुन, त्रिगुण और चौगुन को तब ठीक से कर सकते हैं जब हमको बंदिश पूरी तरीके से याद हो, और बंदिश का याद होना बहुत ज़रूरी है। ये अन्य गायकियों से थोड़ा सा अलग है। हम ख्याल गायकी में हम ख्याल को याद करते हैं, हम ख्याल को गाते हैं, उसका विस्तार वो अलग है, उसमें एक अलग कल्पना शक्ति काम करती है। लेकिन ध्रुपद में भी एक कल्पना शक्ति है, लेकिन अपने नियमों के तहत हमें उस अनुशासन के अंतर्गत हमें रहना है। डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन तो लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन तो हर चीज़ में ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो ये मैथमेटिक्स आपको टाइम मैनेजमेंट बताती है कि इस बंदिश में ये टाइम मैनेजमेंट होना है, और हम उससे न इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। हमने क्रिएटिविटी भी दिखानी है, अपनी उपज भी दिखानी, तब भी टाइम मैनेजमेंट है। और ये टाइम मैनेजमेंट को हम जब आप करिए, कोशिश कीजिए, आप पहले दुगुन को अच्छे से करिए, तिगुन को अच्छे से करिए, चौगुन को अच्छे से करिए, फिर कोशिश करिए कि हम इसी में से कुछ लेके कुछ नया कुछ क्रिएट करें। और देखिए ज़रूर शुरू में थोड़ा आपको ताल की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा हो सकता है शब्द लगातार आने में भी एक समस्या होगी, तो भी आप कोशिश कीजिए, कि कोशिश ही जो है वो आगे आपको सफलता देगी। मैं फिर से उपज का एक उदाहरण आपको देती हूँ। आ, 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 आ,
तो ये थी ध्रुपद गायकी में जो है बंदिश के साथ दुगुन तिगुन चौगुन का। अब जब हम इस गायकी की बात करते हैं, ये गायकी अपने आप में एक संपूर्ण गायकी है और आज के समय में भी देखिए कितने समय से चली आ रही, आज के समय में भी बहुत अच्छे ध्रुपद गायक हैं, डागर घराने से हैं और भी अन्य घरानों से भी हैं। विष्णुपुर घराना भी ध्रुपद गायकी का घराना रहा है। तो जब हम किसी गायकी को सीखते हैं या उसको हम करना चाहते हैं तो पहले उसको पूरी तरह से समझिए कि ध्रुपद गायकी है क्या। मैंने पहले के अपने जो व्याख्यानों में इसके विषय में बहुत विस्तार से बताया है और आज का व्याख्यान ये इस तरीके से थोड़ा सा अलग भिन्न है क्योंकि इसमें मैंने आपको करके बताया कि दुगुन तिगुन चौगुन किस प्रकार से लिया जाता है। अब देखिए यही ध्रुपद गायकी से अन्य गायकियों ने भी बहुत कुछ लिया है। यानी कि जब हम बात करते हैं ख्याल गायकी की बात करते हैं तो ध्रुपद से आलापचारी ख्याल ने लिया और ध्रुपद से लय से खेलना, बोल बनाना, ये सब ये इसमें से लिया है। जो आवाज की डेप्थनेस, जो हम गमक का इस्तेमाल करते हैं ध्रुपद में, गमक भी बहुत 15 प्रकार की गमकें जो है वो बताई गई हैं, लेकिन जिस प्रकार से गमक का इस्तेमाल होता है वो हम ख्याल में यदि हम लेते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। कोई कोई राग तो आलापचारी का जो है उसमें ज़्यादा विस्तार का वो रहता है, तो वहाँ उन रागों में जो है ध्रुपद बहुत सुनाई देते हैं और उन रागों में आगे ख्याल गायकी में भी बहुत सुंदर तरीके से वो आगे आते हैं। हमें जो विशेष रूप से ध्यान देना है जब हम ध्रुपद गायकी को करते हैं तो हमें खास तौर पे सबसे पहले हमने जो राग है उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना है और उसकी आलापचारी जो है वो नोम तोम की होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे डिसिप्लिन जो हैं उसको हमें फॉलो करना है। बंदिश को याद करना है। बंदिश को याद करने का एक कारण है कि जब हम बंदिश को याद करते तो हम अलग अलग लयों में बंदिश को जो है वो हम अच्छे से उसको गा सकते हैं। अब बंदिश को गाने की जब बात है उसमें दुगुन तिगुन चौगुन ये हम दिखा सकते हैं, उपज कर सकते हैं। हमें इसमें खटका मुर्की नहीं है, सरगम नहीं है, ताने नहीं है और इस प्रकार का जो उसका अपना एक संसार है उसमें ही बहुत कुछ जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। So we have to go through the discipline of Dhrupad Gaiki where we have to learn Bandish. We have to start with the Nom Tom Alap. What is Nom Tom Alap? I have already explained you how you can perform Nom Tom Alap and then Bandish. Learning the Bandish itself helps you in Dugun Tigun Chogun and also the Upaj. So try to practice it and you will find the difference in you. You will find the difference in your voice also. So here we end with this episode based on Dhrupad Gaiki. We will come with some other new topics next time. Namaskar.